Okay, hello everyone. Today we are going to create a new project that is ping pong game. Okay, have you heard about ping pong game? Yes, it's almost mostly available on mobile phones. Ping pong game you can easily download your Play Store. But now we are going to create the logic how to create a ping pong game. Okay, let's start. Let's just a look of ping pong game that we are going to create. Here it is. Your example, like how just run your program. Okay, and see here it is maximum outcomes. See, the ball is rotating everywhere, and just green paddle is protecting the ball. If paddle miss the ball, just game over. Okay, and every time when ball hit the paddle, just game increase your score. Okay, so now just let's go for creating the this exciting game. Okay, just go for new file. Okay, just new, and replace the current content. Yes, exactly, just change it. Okay, now we have to create a ping pong game. Just remove this object. We don't need the cat object. Okay, essentially we need some essential objects, like we need a ball object. Okay, just ball, and we need a paddle. Okay, so just choose a paddle. Here it is, just check it once. mm, okay, this one. Okay, just choose this one, and also we need a backdrop. Okay, just take a backdrop, means background. Okay, just okay, we can choose this one, neon tunnel. Okay, you can also choose a brick background. uh, as you can, it's it's up to you. How can you resize or decorate? It's up to you. So just choose neon tunnel. Okay, and here it is my uh, green paddle. Okay, and the task is ball is rotating everywhere in round and round. Okay, and paddle just protect the ball uh, from the from the ground status. Okay, and here it is, just need a red line. Okay, just choose a line object. Line, just type a line. Okay, just scroll down. Hmm, this one. Okay, I got this line, red line. Just fix it in the ground side. Okay, downside. And just you can resize your ball at 100%. Just choose the resize, it's 50%. Okay. Hmm, 50. uh, Maybe some issues. Okay, 50. Let's wait for 2 seconds. Maybe some issues in our system. Okay, size is 10. 120. Hmm, okay, no problem. Okay, it's
it's just a system issue. Yes, you can easily resize here. ठीक है, आप यहाँ से resize कर सकते हैं, but I think there is some system issue. Okay, okay, no problem. Let's just go for coding section. Just initiate your code. Okay, the logic should be the ball move around the all around the corners. Okay, so just let's start. Let's just get started. When start, okay, just fix your position of your ball. Okay, initially when we start the game, just fix your position of your ball, and even as well as paddle. Okay, so just go for go to section. Okay, and fix your ball position, this one, and also as well as paddle position also fix. आप पैडल को भी फिक्स कर दीजिए. ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक. ओके, एंड गो टू सेक्शन. It's mean whenever we start our game, it's the position to acquire our objects. यानी जब भी आप गेम स्टार्ट करेंगे तो इसी पोजीशन से आपका गेम स्टार्ट हो गया. ओके, सो जस्ट चेक इट आउट. जस्ट मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ इधर और रन करा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट को. देखो ऑटोमेटिक वो सेम द पोजीशन एक्वायर करेगा. तो दैट मीन्स इट्स पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट. ठीक है. Now I just want to move our paddle left and right side. Okay, so just code them for these operations. Just take again green flag. Okay, just choose your forever loop, just because left and right multiple condition we have to execute, and choose if condition. Okay, and just go for sensing section. If touching the if key pressed, just this one, take this one. If here it is space option by default, just change it for right arrow. Okay, if the object if the right arrow press, then you have to move right side, and if you are moving right side, that means ball value should be positive. Yani change x should be positive. Yani just go for 10x. Okay, यहाँ you can change the value of this one 15. Okay, okay, there is some problem in my system, the value not be changed. Okay, no problem. And here it is -10. Okay, there is a major issue, I think. Why we cannot type any value? Just wait it out. Notepad. Okay, so just go -10. Okay, now started. ठीक है, and just change your 10 value. Okay, and here it is. You can also change the size of your value. That means 50. Now it's working. Okay, paddle is also just change your values 15. Okay, and right, if you are going to left side, then इट शुड बी अ नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, अगर राइट साइड आप मूव कराओगे तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड मूव कराओगे तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस राइट साइड से अगर जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो आप नेगेटिव हो गए. ऐसे सेम एज अगर वैल्यू बॉल ऊपर आती है, अगर आप ऊपर नीचे आपको करना है तो वैल्यू शुड बी पॉजिटिव फॉर अपवर्ड डायरेक्शन एंड वैल्यू शुड बी नेगेटिव फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो एज इट इज जस्ट no need to change the paddle size, it's completely 100%. Okay, okay, let me check paddle is move or not. Okay, let's see, पैडल आपका मूव कर रहा है जस्ट बिकॉज आपने जो कोड यहाँ पे किया है वो एज इट इज. देखिए आपने क्या किया, ब्लॉक को सिलेक्ट किया, ठीक है,
आपने पोजीशन सेट किया और आपने फॉर एवर लूप में इफ़ राइट एरो प्रेस देन चेंज एक्स 15 एंड लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा है तो -15 यहाँ पे आपने चेंज कर दिया। दैट मीन्स आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट और राइट मूव करेगा एज इट इज़। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर बॉल कोडिंग। ओके, अब आपने बॉल की कोडिंग पे आना, देखो आपने क्या किया, इनिशिएट कर दिया अपनी कोऑर्डिनेट्स को एंड जस्ट गो फॉर अनदर मॉड्यूल। ओके, यहाँ पे आपने सेट कर दिया, जस्ट गो फॉर इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस बॉल को टर्न आउट कराना है ना, तो जस्ट गो फॉर इवेंट सेक्शन। ओके, एंड सॉरी जस्ट टेक अ फॉर एवर लूप and one more thing just missing, point in a direction, just take a point in a direction and 45 डिग्री। ओके, इसको 45 डिग्री इसलिए करना है ताकि वो 45 डिग्री पे रोटेट होता रहे, ठीक है, एंड मूव 10 स्टेप्स। जस्ट गो फॉर, जैसे उसे 45 डिग्री मिले उसे 10 स्टेप पे मूव कराना है, ठीक है। ओके, जस्ट मूव 10 स्टेप्स। लेट्स सी द आउटपुट, देखो ठीक है, राइट साइड आप जैसे इस वॉल को राइट साइड लगो 45 डिग्री वो तुरंत रोटेट कर रहा है जहाँ भी रह रहा है, ठीक है। राइट साइड आपके एक्स एक्सिस के 45 डिग्री पे वो रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, टर्न इन डायरेक्शन इज 45, यानी वॉल आपकी कहीं भी रहेगी वो 40 डिग्री पे जाएगा ही जाएगा। देखो ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन पे आ जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स पॉइंट इन डायरेक्शन मतलब उस बॉल को वो ट्रेस कर रहा है, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, आप जितना भी एजेस हैं उसको वो रोटेट कराना है, ठीक है। जहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे देखो एक टारगेट है, जस्ट चूज अनदर, इफ ऑन एज बाउंस, जैसे उसे एज मिले वो क्या करे, बाउंस करने लगे। सी, अब देखो तुरंत जैसे उसको एज मिल रहा है कहीं पे भी, तुरंत वो क्या कर रहा है, रोटेट कर दे रहा है नेक्स्ट साइड पे, ठीक है। अभी देखो आपका क्या करने लगा, आपका बॉल भी रोटेट करने लगा और आपका पैडल भी एज इट इज वर्क करने लगा, ठीक है, एज इट इज। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जो भी लगता है एज इट इज़ यहाँ पे एज इट इज़ जो आपने कोड किया है वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ अगेन लेट मी चेक अगेन, जस्ट पैडल अगर जैसे इसको टच करता है, ठीक है, जैसे ही आपको पैडल टच करता है तो आपका ये जो बॉल है वो 180 डिग्री टर्न हो जानी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर चैनल के अकॉर्डिंग गेम रन करे। तो जस्ट गो फॉर अगेन कंडीशन। ओके, जस्ट टेक अ फॉर एवर लूप, just go for forever loop, this one, and again just take a condition, if touching, क्यों यूज करें, आपको पैडल को टच कराना है ना, if touching the, just go for sensing, if touching the pedal, okay, if touching the, sorry, if touching the pedal, अगर वो पैडल को टच करेगा तो क्या करना चाहिए, टर्न 180 डिग्री, ठीक है, टर्न 180 डिग्री, यानी तुरंत वो क्या करे, 180 डिग्री पे तुरंत रोटेट कर दे बॉल को। जस्ट गो फॉर मोशन सेक्शन एंड टर्न 180 डिग्री। ओके, जस्ट रीनेम देम, ठीक है। 15 डिग्री को क्या कर दीजिए, 180 डिग्री पे उसको रोटेट करा दीजिए, ठीक है। सी, अभी देखो इसको रन कराते हैं और इस पैडल को चेक करते हैं। देखो जैसे ही पैडल पे बॉल लग रही है वो तुरंत 180 डिग्री पे रोटेट कर दे रही है, ठीक है। ये देखो टच नहीं हुई, ये देखो जैसे ही टच हुई तुरंत वो रोटेट कर दे रहा है 180 डिग्री, जिस भी पोजीशन पे रह रहा है, ठीक है। लेकिन अभी देखो अगर ये बॉल टच करे, जैसे रेड बॉल को टच करे या लाइन को टच करे, आपका गेम स्टॉप होना चाहिए, बट अभी आपने चूंकि उसको कोड नहीं किया है इस वजह से गेम आपका स्टॉप नहीं हो रहा है। तो अगेन जस्ट टेक अ अनदर कंडीशन, जस्ट डुप्लीकेट यहाँ पे, सॉरी इसको यहाँ पे है, इसका आप एक अगेन कंडीशन डिफाइन कीजिए, डुप्लीकेट, ओके, एंड टेक अनदर कंडीशन, इफ टचिंग द लाइन, जैसे उसे लाइन मिले, ठीक है, स्टॉप ऑल, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका ये वाला कंडीशन हटा दीजिए इसको, एंड स्टॉप ऑल। इससे क्या होगा, जैसे वो रेड लाइन को टच करेगा आपका क्या होगा, पूरी की पूरी जो ऑब्जेक्ट हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। जस्ट सी, ठीक है,
देखो जैसे ही आपको अभी फिर से इसको रन कराते हैं और चेक करते हैं कोड सी, ठीक है। देखो अभी तो ये जैसे ही पैडल को टच कर रहा है आपका, देखो स्टॉप हो गया। जैसे आपने पैडल को उसको नहीं मिला, रेड लाइन को जैसे ही टच किया वो क्या हो गया, आपका स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है टारगेट, ठीक है। ये देखो अगेन रन करा के चेक कर लेते हैं। ओके देखो जैसे ही पैडल को टच कर रहा है आपका बॉल 180 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, यानी 45 डिग्री और प्लस 180 डिग्री पे वो रोटेट करना शुरू कर दे रहा है। सी, देखो जितने आप सेट ऑफ सीक्वेंस लिखेंगे उस तरह से आपका वो रोटेट करेगा। देखो यहाँ पे टच नहीं हुआ, जैसे वो लाइन टच करेगा, रेड टच करेगा, उसे वो स्टॉप कर देगा। ओके सी, now just you have to define a score part. Okay, so just create a variable for score, just go for score. Okay, and make a variable, create a score. Okay, score. Okay, as simple as that. देखो यहाँ पे स्कोर ऐड हो गया। एंड जब भी गेम स्टार्ट होता है तो क्या होता है, गेम आपकी क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है ना। तो जस्ट यहाँ पे आप डाल दीजिए वैल्यू शुड बी 0 स्कोर की, ठीक है, जब भी स्टार्ट होगा। और अगर वो ग्रीन पैडल को टच कर रहा है तो आपकी स्कोर कितनी बढ़ जानी चाहिए, 5। यहाँ पे आप 5, 10 जितना भी आप देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब देखो जैसे आप इसको रन कराओगे तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपका गेम स्टॉप, चूँकि आपका टच हो गया रेड लाइन इसलिए स्टॉप हो गया। लेट मी अगेन चेक, देखो 5 स्कोर आपका बढ़ गया। जैसे ही बॉल ग्रीन को टच करेगा आपका 5 स्कोर बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखो एज इट इज़। तो इस तरह से देखो आपने ये चीज़ें तो डिफाइन कर ली, ठीक है। बट इफ़ यू नीड टू क्रिएट मोर अट्रैक्टिव, जस्ट ऐड ऑन साउंड। ओके, तो जस्ट गो फॉर साउंड सेक्शन एंड choose some sound section. Okay, just choose juke. Okay, this one. So just choose that and just go for coding section. Whenever the ball touches the paddle, it's play some sound juke. Okay, start juke, यानी जैसे उसे टच करेगा उसका जूप का साउंड बढ़ेगा, ठीक है। एंड वन मोर साउंड ऐड, जब वो लाइन को टच करेगा, दैट इज एलन क्रैक। यू कैन चूज अकॉर्डिंगली, आप जरूरी नहीं है यही साउंड चूज करो, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ओके, दिस वन एलन क्रैक 2, ठीक है, चेक करो। देखो थोड़ा सा इस तरह से साउंड आ रहा है, मतलब जैसे एक क्रैक टाइप का आ रहा है कि रेड को टच कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट चूज दिस वन एंड अगेन गो फॉर कोडिंग सेक्शन एंड प्ले साउंड एलन क्रैक। जैसे वो लाइन को टच करेगा क्या होगा आपका, वो टच कर देगा, ठीक है। सॉरी, स्टॉप ऑल साउंड नहीं, प्ले साउंड होना चाहिए था। ओके, जस्ट गो फॉर दिस वन, स्टार्ट साउंड एलन क्रैक 2। okay, and you need to define whenever you start the game, then just go for again sound section. Okay, and choose space ripple. I choose this one, space ripple. You can choose accordingly, आप अपने according choose कर सकते हैं। Okay, I just choose this one and just go for कोडिंग सेक्शन। स्टार्ट साउंड, जब भी गेम स्टार्ट होगा क्या होगा, स्पेस रिपल साउंड से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी द स्टार्ट कोडिंग। देखिए अभी कोड क्या हुआ, आपका साउंड भी क्लिक हो रहा है और अगेन आपका ये साउंड प्ले कर रहा है, ठीक है, एज इट इज। देखिए, ठीक है, ऑलमोस्ट डन। और देखो जैसे ही आपका ये आया तो आपका गेम स्टॉप हो गया। बट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको और क्रिएट करना होगा। जैसे यहाँ पे आ जाए, जैसे ये बॉल टच करे यहाँ पे गेम ओवर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, तो लेट्स जस्ट क्रिएट अ गेम ओवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। पेंट, जस्ट गो फॉर पेंट सेक्शन एंड टाइप गेम ओवर, ठीक है। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं आप। ओके, इसको रेड कलर से कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको बड़ी कर देते हैं साइज। ओके, दिस वन,
थोड़ा सा इसको बीच में कर देते हैं वर्ड, ठीक है, और थोड़ा सा इधर, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे गेम ओवर का ऑब्जेक्ट भी शो हो रहा है, ये देखो यहाँ पे गेम ओवर। अब जब आप गेम प्ले करेंगे तो देखो गेम ओवर भी दिख रहा है, ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। इसको रिमूव करने के लिए जस्ट गो फॉर कोडिंग सेक्शन, ठीक है, आप इस कोडिंग सेक्शन पे आइए और जब गेम स्टार्ट होगा तो इसको हाइड कर देना बेटा, ठीक है, जस्ट गो फॉर हाइड सेक्शन। व्हेन गेम स्टार्ट, जब भी आप गेम स्टार्ट करेंगे तो ये हाइड हो जाना चाहिए गेम ओवर का ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अभी आपका गेम ओवर तो हुआ नहीं है। तो जस्ट गो फॉर हाइड सेक्शन, आपको यहाँ पे लुक्स फॉर हाइड, हियर इट इज़, लुक्स में आप आएंगे तो हाइड मिल जाएगा, यानी जब भी गेम स्टार्ट होगा तो ये हाइड होना चाहिए। कब विजुलाइज होना चाहिए? जब आपका गेम ओवर हो जाना चाहिए। तो जस्ट गो फॉर बॉल सेक्शन एंड गिव अ मैसेज, जब भी स्टार्ट हो तो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करे गेम ओवर। तो जस्ट गो फॉर इवेंट सेक्शन एंड ब्रॉडकास्ट अ मैसेज, जैसे ही उसे लाइन टच करे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दे, क्या? गेम ओवर। यहाँ पे एक मैसेज ओवर कर दीजिए, गेम ओवर, ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज वो ड्राइव करेगा जैसे वो लाइन टच करेगा, गेम ओवर, ठीक है। एंड जस्ट गो फॉर स्प्राइट एंड व्हेन आई रिसीव अ गेम ओवर, जब उसे एक गेम ओवर का कमांड मिले, ठीक है, जैसे उसे गेम ओवर का कमांड मिलेगा क्या करेगा? ये शो हो जाना चाहिए। ये ऑटोमेटिक जो आपका ऑब्जेक्ट जो हाइड हो जाता है स्टार्टिंग में, वो क्या होना चाहिए? शो हो जाना चाहिए। सी show, just need scroll down this one, okay, you can also add on music यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपका स्टार्ट हो तो यहाँ पे एक म्यूजिक भी आप ऐड कर सकते हो। सी जस्ट गो फॉर चूज bong, ठीक है, I just choose this one, bong, okay, just play sound, okay, this one, okay, now almost completed. Let's see the output of your code. Just run your program, see, okay, see your score will be increased, yes, see, ठीक है, आपका एज इट इज स्कोर बढ़ रहा है, ओके। एंड व्हेन, ये देखो जैसे ही आपका रेड लाइन को टच किया आपका गेम ओवर का टास्क विजुलाइज हो गया और आपका गेम स्टॉप हो गया। तो दैट्स मीन इट्स ऑल अबाउट पिंग पोंग गेम। ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया ये सभी पिंग पोंग गेम के बारे में ही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में जहाँ पे भी आप इसको कोड कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप इसको मैसेज कर देंगे तो मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूँगा। ओके, सो बाय बाय बेटा, टेक केयर।